बंगाल मिरर प्राइम टाइम पर देखे खबरें फटाफट। अब चंद मिनटों में जाने शिल्पांचल का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। इस न्यूज के टाइटल स्पॉन्सर है हयात पैलेस वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल। अन्य स्पॉन्सर है रामकृष्ण मिशन आश्रम प्राइवेट ITI। इसके अलावा होटल पायल इन। आसनसोल नगर निगम के वार्ड संख्या 52 में दीवार लेखन को लेकर भाजपा और तृणमूल कांग्रेस TMC के बीच विवाद सामने आया है। TMC की काउंसलर मौसमी बासु का आरोप है कि संबंधित दीवार पार्टी द्वारा पहले से बुक की गई थी और उस पर उनके उम्मीदवार का नाम लिखा जाना था, लेकिन वहां पहले से भाजपा उम्मीदवार का नाम लिखा मिला। उन्होंने कहा कि इस मामले की जानकारी उम्मीदवार मलय घटक को दे दी गई है। वहीं भाजपा प्रत्याशी कृष्णेंदु मुखर्जी ने कहा कि इस बार उस स्थान पर भाजपा का अस्थायी चुनावी कार्यालय बनाया गया है और दीवार के उपयोग को लेकर पहले ही TMC को सूचित किया गया था। उन्होंने यह भी बताया कि दीवार के मालिक से लिखित अनुमति लेकर ही भाजपा ने दीवार लेखन किया है। इस विवाद के बाद इलाके में राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। हालांकि प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है। फिलहाल दोनों दलों को दीवार लेखन से मना किया गया है। না না ওটা ওই দেওয়ালটা ওদের বক্তব্য, ওরা আগে নাকি ওই দেওয়ালটা লিখতো। হ্যাঁ, আগে ওরা ওই দেওয়ালটা লিখতো, ঠিকই আছে, এটা কোনো অসুবিধা না। তো আমি ওদেরকে খবর পাঠিয়েছিলাম যে ওই দেওয়ালটা যদি না লেখা যায়, যেহেতু ওখানে ওইখানে আমাদের একটা অস্থায়ী অফিস হচ্ছে ওইখানটাতে, আর ওই অস্থায়ী অফিসের দেওয়ালে একটা তৃণমূল কংগ্রেসের লেখা থাকবে, ওটা ঠিক ঠিক নয়। আর বলেছিলাম যে ওটা যেন না করা হয়। তো যথারীতি কাল ওরা ওয়াল ফর TMC এমনি একটা লিখে দিয়েছিল, শুন করেছিল। তো আজকে ওই যে যে জমির মালিক, তার সঙ্গে আমার গায়ে, আমার ঘরের পাশের জমি, একটা কোর্টে একটা ডিসপিউট আছে, ওটাতে কোর্টে পেন্ডিং আছে কেস ওই জমির। এবং ওখানে এখন বর্তমানে যে জমির যার কাগজপত্রে যার নাম আছে, স্বর্গীয় অরবিন্দ ভগতের মিসেস, তার কাছ থেকে আমরা ওখানে দেওয়ালটা লেখবার কনসেন্ট নিয়ে এসেছি। এই কনসেন্ট আমরা তার কাছ থেকে নিয়ে এসেছি, ওই দেওয়ালটা আমরা ব্যবহার করবো, এটা অনুমতি। সমস্যা বলতে কালকে আমাদের ছেলেরা এখানে হোয়াইট ওয়াশ করেছে, দেয়ালটা আমরা বুকিং করেছিলাম। আমরা আগেই দেয়ালটাকে বুকিং করেছিলাম, কিন্তু তারপর আমাদের এখানে বিভিন্ন দেয়ালে আমাদের প্রায় লেখাও কমপ্লিট হয়ে গেছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও সেখানে রীতিমতো গুটখা খেয়ে পানের পিক ফেলে পুরো দেয়ালগুলোকে নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। অগ্রণীর পুরো এরিয়া আমাদের দেয়ালগুলো নষ্ট করে দিয়েছে। কালকে যখন এই দেয়ালটা আমাদের বুক করা হয়েছিল, ওখানে আমরা TMC লিখেও দিয়েছিলাম। তা সত্ত্বেও আজকে আবার এখানে খবর পেলাম যে এখানে আবার বিজেপির ক্যান্ডিডেটের নাম লেখা হচ্ছে। এটাই হয়ে গেছে আমাদের সমস্যা, যে আমরা বুক করা সত্ত্বেও উনি কি করে পারলেন যে এখানে ওনাদের ক্যান্ডিডেটের नाम लेखाते। आगामी राज्य विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। पश्चिम बर्धमान जिले में 23 अप्रैल को मतदान होना है, जिसके मद्देनजर पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। इसी क्रम में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर पश्चिम बंगाल और झारखंड सीमा स्थित कुल्टी थाना क्षेत्र के डूबुरडीही चेकपोस्ट पर कड़ा नाका चेकिंग शुरू कर दिया गया है। यहां आने जाने वाले वाहनों की सघन तलाशी ली जा रही है, ताकि किसी भी तरह की अवैध गतिविधि को रोका जा सके। शनिवार की शाम आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के पुलिस आयुक्त प्रणव कुमार ने डूबुरडीही इंटरस्टेट नाका चेकिंग का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। पुलिस आयुक्त ने बताया कि चुनाव से पहले कमिश्नरेट क्षेत्र के कुल 23 स्थानों पर नाका चेकिंग की जा रही है। इन सभी स्थानों का लगातार निरीक्षण किया जा रहा है, ताकि चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराया जा सके। আমরা দেখছি, আমরা ডিফারেন্ট নাকা লাগিয়েছি ইন্টারস্টেট বর্ডারে আর ইন্টার ডিস্ট্রিক্ট বর্ডারে। আমাদের টোটাল 23টা নাকা চলছে এখন। সেটাই আমরা দেখছি যে এখান থেকে কাজ করছে। কোন কোন নাকায় স্যার ভিজিট করা হবে? এখন জাস্ট আমরা এই ফার্স্ট নাকা পেয়েছি, এরপর ফার্স্ট এখানে এসেছি। দেখছি এখন আমরা কি প্ল্যান আছে, আমরা ডিসকাস করছি।
কি কি সুরক্ষা দেওয়া হয়েছে, নাকাতে কি কি চেকিং করা হচ্ছে? না নাকাতে সব রকম যেটা ইলেকশন কমিশনের ইনস্ট্রাকশন আছে কি কোনো বর্ডারতে কোনো কন্ট্রাব্যান্ড মুভমেंट না করে ক্যাশ লিকার এগুলোকে চেক করছে। आसनसोल बर्नपुर शिल्पांचल वासियों के लिए शादी विवाह हो या निकाह, जन्मदिन हो या अन्नप्राशन या फिर कोई और आयोजन के लिए अब वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हयात ग्रुप का हयात पैलेस बैंक्वेट हॉल आपकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए तैयार है। जी हाँ, आसनसोल के इस्माइल आजाद नगर में वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस हयात पैलेस में आप कर सकते हैं कोई भी आयोजन। हयात पैलेस में आपको मॉडर्न सुविधाओं से युक्त बैंक्वेट हॉल, स्टेज और स्टार कैटेगरी की सुविधाओं से लैस कमरे उपलब्ध है। ये सुविधाएं आपको किफ़ायती दरों पर उपलब्ध है, तो फिर देर किस बात की। बुकिंग के लिए अभी संपर्क करें 9832213829 पर। और हाँ, बंगाल मिरर के दर्शकों के लिए बुकिंग में विशेष सुविधा मिलेगी। স্কিল ইন্ডিয়া গড়তে উদ্যোগী হয়েছে আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট আইটিআই। মাধ্যমিক উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের স্কিল ডেভেলপ করতে আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট আইটিআই এর উদ্যোগ জীবন নির্মাণে আলোর দিশা। আর এরই মাধ্যমে বিগত 7 বছর ধরে সাফল্যের সাথে এগিয়ে চলেছে। আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট আইটিআই এর বিভিন্ন কোর্সগুলির মধ্যে রয়েছে ইলেকট্রিশিয়ান কোর্স ও ফিটার কোর্স 2 বছরের জন্য, ওয়েল্ডার ও কম্পিউটার অপারেটর অ্যান্ড প্রোগ্রাম অ্যাসিস্ট্যান্ট কোর্স 1 বছরের জন্য। শুধু তাই নয়, প্লেসমেন্টেরও ব্যবস্থা চোখে পড়ার মতো। বিভিন্ন কোম্পানি প্লেসমেন্টের মাধ্যমে আইটিআই ট্রেনীদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ার লক্ষ্যে এগিয়ে এসেছে। আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট আইটিআই থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রী উভয়ই প্লেসমেন্ট পেয়েছে। কোম্পানির কর্তৃপক্ষ তাদের দক্ষতা এবং আচরণ নিয়ে প্রসন্ন। তাই আমাদের লক্ষ্য ছাত্র ও ছাত্রী উভয়ের দক্ষতাকে সমান্তরালভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। ভর্তি সংক্রান্ত বিশদ বিবরণ জানার জন্য এখনই যোগাযোগ করুন 7585874749 এই নম্বরে। उड़नों की ऊंचाई हर कदम पर। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के कुल्टी थाना अंतर्गत चौरंगी चौकी इलाके में शुक्रवार रात एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। कोयला लदा एक ट्रक राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर डुबुरडीही कल्याणेश्वरी मार्ग से गुजरते समय अनियंत्रित होकर पलट गया। बताया जा रहा है कि ट्रक कल्याणेश्वरी की ओर जा रहा था, तभी अचानक चालक का नियंत्रण वाहन पर से हट गया। इसी दौरान सड़क किनारे नाले में ट्रक का पहिया फंस गया, जिससे ट्रक पलट गया। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन दुर्घटना के कारण पास की एक दुकान के सामने बना शेड और एक बिजली का खंभा क्षतिग्रस्त हो गया। घटना के बाद इलाके में कुछ समय के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर ईद की छुट्टियों का भरपूर उपयोग करते हुए विभिन्न दलों के प्रत्याशी अपने क्षेत्रों में प्रचार अभियान तेज करते नजर आए। दुर्गापुर पश्चिम से तृणमूल कांग्रेस प्रत्याशी कवि दत्ता ने सिटी सेंटर स्थित एक होटल में महिला नेताओं के साथ बैठक कर चुनावी रणनीति पर चर्चा की। बैठक में संगठन को मजबूत करने और महिला मतदाताओं तक पहुंच बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया। इसके बाद सिटी सेंटर से प्रेस क्लब तक रैली निकाली गई। একটা প্রশ্ন বলতে পারো একটা কি বলবো এটাকে ঠিক আমার ভাষা নেই। এনিহাও ভালো তো লাগিয়েছে, এত স্বতঃস্ফূর্ততা, এত বোন, এত দিদি, মানে দেখো বেলা 11টার সময় তারা ঘরের কাজ সামলে সবাই এসছে, মানে কতটা ভালোবাসলে তারা আসতে পারে। আমি সেটাই তাদেরকে যে সময় বলার সময় বললাম, আই এম স্পেলবাউন্ড। আমার এত ভালো লেগেছে, সবার ভালোবাসা পেয়ে আমি আপ্লুত। বলছি ভোট চাইছেন না, বলছেন কাজের মানুষ, কাছের মানুষকে আগে যাচাই করে নিতে বললেন। একটা কথা আমি পরিষ্কার করে বলছি, মানুষ তো আমার কথাতে, কারোর কথাতে ভোট দিচ্ছে, নিজের যুক্তি ইয়েতে বিচার করে দেবে।
আমি তো আবার বলছি আমি ভিক্ষা চাইছি না, যদি যোগ্য মনে করেন বা করে কেউ তাহলেই যেন ভোট দেয়, একদম পরিষ্কার কথা। তো মহিলাদের উচ্ছ্বাস কেমন ছিল? অসাধারণ, আপ্লুত। আমি তো বললাম আমি আপ্লুত, আমি নিজেই জানতাম না যে এই এত ভালোবাসা আমি পাবো। খুব আন্তরিক ভাবে বললাম কথাটা। হ্যাঁ, वहीं कुल्टी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर अजय पोद्दार ने मां कल्याणेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना कर अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत की। परिवार और समर्थकों के साथ मंदिर में आशीर्वाद लेने के बाद उन्होंने वार्ड 16 से जनसंपर्क अभियान शुरू किया और क्षेत्र की खुशहाली की कामना की। ভালো থাকুক, সুস্থ থাকুক, যেভাবে পশ্চিম বাংলা চলছে সেভাবে জিহাদি রাহাতে আর পশ্চিম বাংলা না যায়। प्रांगण में पूजा करते हुए पूजा के बाद मैं सब परिवार यहाँ पर उपस्थित हूँ और अभी 16 नंबर वार्ड से मैं प्रचार शुरू करूँगा। माँ से मैंने कामना की है पश्चिम बंगाल से इस जिहादी सरकार को उखाड़ फेंके माँ, पश्चिम बंगाल के लोगों को सुख शांति समृद्धि और उन लोगों का जैसा सोनार बांग्ला था वो बांग्ला वापस माँ इन्हें प्रदान करे। इधर आसनसोल दक्षिण से वामपंथी प्रत्याशी शिल्पी चक्रवर्ती ने बर्नपुर इलाके में घर घर जाकर जनसंपर्क अभियान चलाया। उन्होंने बेरोजगारी, उद्योगों के पुनर्जीवन और कथित कोयला बालू माफिया के खिलाफ कार्रवाई जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाते हुए लोगों से समर्थन मांगा। कुल मिलाकर ईद की छुट्टियों के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रत्याशी मैदान में उतरकर मतदाताओं तक पहुंच बनाने और चुनावी माहौल को अपने पक्ष में कर ईद का पर्व इस वर्ष भी शांति, उत्साह और आपसी भाईचारे के साथ शिल्पांचल में मनाया गया। आसनसोल, रेलपार, बर्नपुर, रानीगंज, कुल्टी, दुर्गापुर के मुस्लिम बहुल इलाकों को आकर्षक ढंग से सजाया गया था, जिससे पूरे क्षेत्र में उत्सवी माहौल देखने को मिला। मुर्गासाल स्थित ईदगाह में सुबह से ही नमाजियों की भारी भीड़ उमड़ी। बड़ी संख्या में लोग ईद की नमाज अदा करने पहुंचे। भीड़ अधिक होने के कारण कई लोगों को ईदगाह के बाहर जीटी रोड पर बैठकर नमाज अदा करनी पड़ी। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी और देश में अमन चैन की दुआ मांगी। इस अवसर पर राज्य के श्रम व कानून मंत्री मलय घटक, आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, उपमहापौर वसीम उल हक सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे और लोगों को ईद की शुभकामनाएं दी। मंत्री मलय घटक ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में राज्य और आसनसोल में लगातार विकास कार्य हो रहे हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि आगामी विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को फिर जीत मिलेगी और विकास का यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। अभिजीत घटक कुल्टी के विभिन्न इलाकों में ईद के कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं सांसद शत्रुघ्न सिन्हा मक्का अपार्टमेंट में आयोजित ईद मिलन समारोह में पहुंचे। मौके पर अत्ताउल्लाह खान, उद्योगपति विजय शर्मा आदि उपस्थित थे। मिठाई बाबू के नेतृत्व में अपर चेलीडंगाल इलाके में भव्य आयोजन किया गया। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি বলেন যে নিজের নিজের ধর্ম আমরা সবাই পালন করি, কিন্তু যখন উৎসব হয় তখন সব ধর্মের মানুষরা আমরা এক জায়গায় চলে আসি। সেটা আমরা দেখতে পাই দুর্গাপুজোর সময় আমরা দেখি যে সেখানে দুর্গাপুজো যারা মানে আমাদের হিন্দুদের পুজো, সেখানে মুসলিম ভাইরাও সেখানে অনেক সময় থাকেন এবং অনেক কমিটিতে দেখবেন মুসলিম ভাইরা তাদের সেই কমিটিতে থাকেন, পুজো কমিটিতে। ये सिद्धांत मेरे अंदर शुरू से ही रहा है। हम लोग का सीतारामपुर एक ऐसा वार्ड है जिस वार्ड में हर धर्म के लोग अपना अपना पर्व, अपना अपना त्योहार
बहुत ही अच्छा से और सब मिलजुल कर मनाते हैं, क्योंकि मेरा शुरू से कहना है रामनवमी में भी राम है और दीपावली में भी अली। जिस चांद को देख के हम लोग आज ईद मना रहे हैं, उसी चांद को देख के करवा चौथ भी मनाया जाता है। आज सुबह से मेरे बहुत से भाई लोग मुझसे ईद मुबारक करने के लिए आए, तो मैंने देखा सब कोई ज्यादा से ज्यादा लोग कुर्ता पजामा पहन के रखे थे। और मैंने देखा है हिंदुओं के त्योहार में भी तो उनका ट्रेडिशनल कपड़ा होता है, वो कुर्ता और पैजामा ही होता है। इसीलिए एक इंसान दूसरा इंसान से नफरत नहीं कर सकता है, सिर्फ इस बात पर मजहब और धर्म के आधार पर। ये बात कभी भी इस वर्ल्ड में स्वीकार्य नहीं थी, ना है, ना आने वाला दिन में रहेगी। मैं अल्लाह ताला से दुआ करूंगा आप लोगों का हर रोजा, हर दुआ, हर इबादत आप लोगों का कबूल हो। दुआ में याद रखिएगा। नमस्कार।